Good morning, students. So it's our fourth lecture for cytogenetics. So today we have to study DNA topology. As we discussed till tertiary structure in our last class, today we have to discuss about DNA topology. So DNA is a flexible structure and it means there are some free ends which are free in the linear structure of DNA, and these free ends can sometime twist together and make a circular DNA, right? DNA क्या है? DNA एक flexible structure है. डबल हेलिकल DNA के लीनियर DNA मॉलिक्यूल के जो फ्री एंड्स होते हैं वो रोटेट करते हैं एंड वो रोटेशन के बाद वो जो चेन है डबल हेलिक्स ट्विस्ट की एक साथ एक सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल बनाते हैं. और ये जो लिंकेज होता है, ये लिंक जो होता है ये कोवेलेंट बॉन्ड के कारण होता है. इसको हम टोपोलॉजिकल कंस्ट्रेंट बोलते हैं. ये जो लिंक बनता है सर्कुलर डीएनए का, वी कैन से इट टोपोलॉजिकल कंस्ट्रेंट. डीएनए जब ट्विस्ट होता है एंड कॉइल होता है तो एक टेलीफोन वायर जैसे ट्विस्ट होता है. पहले सबसे पहले वो वायर आपस में फर्स्ट लेवल ऑफ ट्विस्टिंग करता है, उसके बाद वो बिल्कुल कॉइल हो जाता है. उस तरह से डीएनए में हम जो सुपर कॉइलिंग है, हम सुपर कॉइलिंग को उससे कंपेयर कर सकते हैं. सुपर कॉइलिंग में भी या तो राइट हैंडेड होगी या लेफ्ट हैंडेड होगी. सो बेसिकली इफ वी कैन डिफाइन टोपोलॉजी, टोपोलॉजी is the aspect of DNA structure arise primarily from the fact that uh, that two DNA strands are repeatedly intertwined or DNA segment constrained in such a way that its end cannot rotate freely is called topological domain or topological constraint, which we can say. After this topological constraint, the linear DNA molecule becomes circular, and this so after becoming circular DNA molecule, and if there are no interruptions in the sugar phosphate backbones of two strands, then the absolute number of times the chain can twist about each other cannot change, right? So this phenomenon we can say it's a topological constraint. So further we can more explain this topological constraint, how we can calculate it, what exactly topological constraint means, and how we can calculate topological constraint for CCC DNA, means covalently closed circular DNA. So you can see this topological state of CCC DNA, covalently closed circular DNA. Topological property of covalently closed circular DNA, which we can refer it as CCC. So because there are no interruption in either polynucleotide chain, the two strands of CCC DNA cannot be separate from each other without the breaking of covalent bond. So if we wish to separate two circular strands without permanently breaking any bond in the sugar phosphate backbones, we would we would we would have to pass one strand through the other strand repeatedly. The number of times one strand would have to pass through the other strand in order for the two strands to be entirely separated from each other is called the linking number, as you can see in this figure. The linking number, which is always an integral in an invariant topological property of CCC DNA.
So no matter how much the shape of DNA molecule is distorted. So basically टोपोलॉजिकल स्टेज क्या होती है, टोपोलॉजी क्या होती है, हम इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, सीसीसी डीएनए की टोपोलॉजी को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये हम इसमें समझ रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये समझना है कि व्हाट इज सीसीसी डीएनए। सीसीसी डीएनए की फुल फॉर्म है कोवलेंटली क्लोज सर्कुलर डीएनए, जिसको हम सीसीसी डीएनए बोलते हैं। अगर सीसीसी डीएनए में कोई भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में किसी भी प्रकार का इंटरप्शन नहीं है, तो उसके जो दो स्ट्रैंड हैं वो एक दूसरे से सेपरेट नहीं हो सकते, बिना तोड़े वो एक दूसरे से सेपरेट नहीं हो सकते जब तक उनके बॉन्ड ब्रेक नहीं हो। सो अगर हम इनको सेपरेट करना चाहें दो स्ट्रैंड को परमानेंटली, तो हमें उसके ब्रेक करना पड़ेगा बॉन्ड्स को, और उसकी शुगर फॉस्फेट बैकबोन को हमें तोड़ना पड़ेगा। अगर ये जो स्ट्रैंड है रिपीटेडली एक दूसरे स्ट्रैंड के साथ कितना बार स्ट्रैंड वन दूसरे स्ट्रैंड के साथ घूमता है, दूसरे स्ट्रैंड के पर घूमता है, उसे हम लिंकिंग नंबर कहते हैं। लिंकिंग नंबर ट्रोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी का, सीसीडीएनए की ट्रोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी का एक ऐसा इंट्रिगर है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि डीएनए में कितनी बार कॉइलिंग हुई है। लिंकिंग नंबर बेसिकली दो चीजों से कंपोज होता है, ट्विस्ट एंड रिस। लिंकिंग नंबर इज कंपोज्ड ऑफ टू फिनोमिना or we can say two parameters, one is twist and other one is rip। ये फिगर आप देखिए, ये बेसिकली सीसीसी डीएनए का कन्वर्जन है फ्रॉम रिलैक्स फॉर्म टू नेगेटिवली सुपरकॉइल्ड फॉर्म। इसमें हम देख सकते हैं कि जो ए फिगर है दैट इज रिलैक्स फॉर्म ऑफ डीएनए, एंड जो बी फिगर है दैट इज नेगेटिवली सुपरकॉइल्ड फॉर्म, राइट। और इसके बीच में जो डिस्ट्रप्शन हुआ है बेस पेयरिंग का वो हम सी में देख सकते हैं। बेसिकली आप इसमें देख सकते हो ए में जो लिंकिंग नंबर है दैट इज 36, क्योंकि लिंकिंग नंबर इज सम टोटल ऑफ ट्विस्ट एंड रिस। लिंकिंग नंबर इज 36 बिकॉज ट्विस्ट आर 36, एज आप नंबर से काउंट कर सकते हैं एंड देख सकते हैं, एंड रिस्ट आर 0। एंड सेम इन बी फिगर हम देख सकते हैं, इसमें टोटल लिंकिंग नंबर 32 है बिकॉज ट्विस्ट आर 36 एंड रिथ आर -4। एंड सी में जिसमें बेस पेयर मिसिंग है, लिंकिंग नंबर इज 32 बिकॉज अगेन ट्विस्ट आर 32, कुछ बेस पेयर मिसिंग है इस वजह से, एंड रिथ इज 0। लिंकिंग नंबर इज 32. So you can basically you can understand what is the linking number twist and rip। बेसिकली ये जो फिगर है मैं अगेन आपको एक्सप्लेन करती हूँ, ये डीएनए की रिलैक्स फॉर्म को दिखाता है, ए फिगर जो सबसे पहला है, बी फिगर उसके सुपरकॉइल्ड फॉर्म को, नेगेटिवली सुपरकॉइल्ड फॉर्म को दिखा रहा है, और जो सी फिगर है उसमें कुछ बेस पेयर जो डिसरप्शन हुआ है उसके बाद की फॉर्म को वो दिखा रहा है। ए में भी हम देख सकते हैं कैसे जो लिंकिंग नंबर है वो कैसे कैलकुलेट हुआ है, टोटल ट्विस्ट प्लस डिप कितने हुए 36। बी में हम देख सकते हैं अगेन 32 बिकॉज ट्विस्ट आर 36 एंड रिथ आर -4। एंड अगेन सी में हम देख सकते हैं लिंकिंग नंबर इज 32 बिकॉज twist are 32 and rith are 0। So further we can understand what is twist and rith in detail and how it compose, how linking number compose because of twist and rith, और twist और rith basically है क्या। आगे हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं कि ट्विस्ट और रिथ है क्या जिससे कि लिंकिंग नंबर बना है। Because equation of linking number is the numerical expression of degree of supercoiling या linking number जिसे हम कहते हैं। इक्वेशन कुछ ऐसी होती है, एल के इक्वल्स टू टी डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू आर। टी डब्ल्यू जहां पे एल इज द लिंकिंग नंबर ऑफ टाइम दैट वन डीएनए स्ट्रैंड वाइंड अबाउट द अदर स्ट्रैंड, इट इज ऑलवेज एन इंटीग्रल। टी ट्विस्ट है ऑफ रिजोल्यूशन अबाउट द डुप्लेक्स हेलिक्स, and W rith of turn of duplex
axis about the helical by definition the measure of degree of supercoil. दैट मीन्स इसमें जो L है, मैं आपको फिर से बताती हूँ हिंदी में, जो न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है सुपर कॉइलिंग का, वो L के इक्वल्स टू TW प्लस WR होता है, जिसमें L लिंकिंग नंबर होता है, जो कि ये बताता है कि डीएनए का एक स्ट्रैंड दूसरे स्ट्रैंड पर कितनी बार लिंक हुआ है इन टोटल टाइम, राइट। एंड ट्विस्ट क्या होता है, डुप्लेक्स का कितनी बार उसकी ट्विस्टिंग हुई है, रिजोल्यूशन कितनी बार हुआ है। रिथ क्या होता है, टर्न ऑफ डुप्लेक्स, एक्सिस पे उसका कितनी बार टर्न हुआ है। सुपर हेलिक्सिटी जब बनती है उसको हम रिथ बोलते हैं। इसको हम डिटेल में आगे और समझते हैं, what is twist and what is wreath, and we can also see in figure what is positively supercoiling and what is negatively supercoiling. This is the two form of supercoiled DNA, जिसमें आप आराम से देख सकते हैं। In this figure is showing the इंटीगर वुंडिंग, मतलब ये इंटरनल जो डीएनए की कैसे इसमें इंटरवुंडिंग होती है, ठीक है, उसको हम इसमें देख सकते हैं। सबसे पहले तो द लिंकिंग नंबर है, जो सम टोटल है, जो दो ज्योमेट्रिक कंपोनेंट का, जिनको हम ट्विस्ट और रिस्ट बोलते हैं। ट्विस्ट सिंपली नंबर है हेलिकल टर्न का, एक स्ट्रैंड का दूसरे के साथ, द नंबर ऑफ टाइम कितनी बार वो उस स्ट्रैंड के साथ रैप हुआ है विद अनदर स्ट्रैंड, तो वो उसका नंबर है टोटल, इन टोटल। एंड the linking number is the sum of two geometrical components called twist and wreath. So twist is the simply the number of helical turns of one strand about the other, that is the number of time, how many time one strand completely wrap another strand. So we consider the cccDNA again for understanding the wreath. Generally, cccDNA is not lying flat on a plane, rather it is usually torsionally stressed, such that the long axis of double helix crosses over itself, maybe repeatedly, right? So this is called wreath. So visualize the wreath, we can see this figure and we can visualize the telephone cord wire. Then wreath can takes two form. One is interwound or platonic wreath, in which the long axis is twisted around itself, as depicted in this figure B, right? And another form of wreath is toroid or spiral, in which long axis is wound in a cylindrical manner, as often when DNA wraps around protein. So wreath number WR is a total number of interwound and or spiral wreaths in cccDNA, as shown in this figure. So this interwound wrist and spiral wrist are topologically equivalent to each other, and they are interconvertible geometric property of cccDNA. This twist and wrist are interconvertible. A molecule of cccDNA can readily undergo distortion that converts some of its twist to wreath and some of its wreath to twist without breakage of any covalent bond. The only constraint is the sum of the total sum of the twist number and the wreath number must remain equal to linkage number. As I told you earlier, LK equals to TW plus WR. As you can say, you can see in this figure two form of wrist of supercoiled DNA. In figure A, we can see toroidal form of supercoiled DNA. It is a spiral shape, and this A form is spiral shape,
and we can see this same form in telephone wire, and we can see that the width of CCC DNA in B of same length DNA, that B is so this figure depicts the interwound form A and toroidal form B, right? On in width of CCC DNA of same length. This interwound form, or we can say plactonymic width, is formed by twisting of double helical DNA molecule over itself, as depicted in this branch molecule. And this toroidal or spiral wreath is depicted by the example of cylindrical coil, as we can see this both form in telephone wire. So अब इस लिंकिंग नंबर जो बेसिकली दो फॉर्म से मिलकर बनाता है, ट्विस्ट एंड डिस्क, तो जो लिंकिंग नंबर है सम टोटल है इन दोनों ज्योमेट्रिकल कंपोनेंट का, जिनको हम ट्विस्ट एंड डिस्क कहते हैं. ट्विस्ट सिंपली हम ऐसे बता सकते हैं कि जब हेलिकल डीएनए स्ट्रक्चर का एक स्ट्रैंड जितनी बार जितने टाइम दूसरे स्ट्रैंड के साथ कंप्लीटली व्रैप करता है, उसको कवर करता है, उसको हम ट्विस्ट कहते हैं. ट्विस्ट नंबर को हम इजीली काउंट कर सकते हैं और 2 स्ट्रैंड में जितनी बार उसने रैप किया उससे. एंड जब सीसीसी डीएनए हमेशा एक फ्लैट प्लेन में नहीं होता है, रादर देन कई बार ये स्ट्रेस में होता है, लॉन्ग एक्सिस में होता है डबल हेलिक्स डीएनए, और रिपीटेडली क्या होता है लॉन्ग एक्सिस में होने की वजह से इसमें ट्विस्ट के बाद भी एक और इसमें डिस्टॉर्शन और इसमें एक कॉइलिंग आ जाती है, लाइक टेलीफोन वायर, जिसको हम रिथ कह सकते हैं. रिथ को हम दो फॉर्म में देखते हैं. पहली फॉर्म इंटरवुंड या प्लैक्टोनिमिक रिथ हम उसे कहते हैं, जब लॉन्ग एक्सिस ट्विस्ट होता है डीएनए का अराउंड इटसेल्फ, उसी के चारों तरफ, जैसा कि हम इसमें फिगर ए में इस फिगर के ए पार्ट में देख पा रहे हैं. दूसरा फॉर्म होता है इसका टोरॉइड और स्पाइरल फॉर्म, जो बी में हम देख पा रहे हैं, जब लॉन्ग एक्सिस सिलेंडर की तरह एक डीएनए के ऊपर कवर करता है, जैसे डीएनए प्रोटीन पे करता है, आपस में जब एक साथ वो रैप करता है, लाइक जैसे डीएनए प्रोटीन को रैप करता है, उस तरह जब होता है तो उसको हम बोलते हैं स्पाइरल और टोरॉइड. तो ये जो रिथिंग नंबर है ये सम टोटल होता है इंटरवुंडिंग का एंड स्पाइरल रिथ का सीसीसी डीएनए में. सो बेसिकली जो इंटरवुंडिंग रिथ है और स्पाइरल रिथ है, ट्रोपोलॉजिकली ये दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं, और ये ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी सीसीडीएनए में इंटर कन्वर्टेबल है, एंड ऑल्सो ट्विस्ट एंड डिस्ट भी इंटर कन्वर्टेबल है. सो जो डीएनए का मॉलिक्यूलर रेडिली डिस्टोर्शन, जो डीएनए का मॉलिक्यूल है वो क्या होता है कि जब भी डीएनए के मॉलिक्यूल में जब भी कोई डिस्टॉर्शन होता है, यानी कुछ भी इधर उधर तोड़ मरोड़ होता है, विरूपण होता है, तो ये जो रिथ है, ट्विस्ट है, वो रिथ में कन्वर्ट होता है एंड रिथ ट्विस्ट में, और ये बिना कोवेलेंट बॉन्ड की ब्रेकेज के होता है. सो इस प्रकार के कंस्ट्रेंट को इस कंस्ट्रेंट को हम जो है ट्विस्ट नंबर एंड रिथ नंबर को हम सम इक्वल इनका लेते हैं, उसको हम लिंकिंग नंबर कहते हैं. सो लिंकिंग नंबर का फॉर्मूला आप देख रहे हैं, इस पे लिखा हुआ है स्लाइड पे. एज पर वॉटसन क्रिक मॉडल, यूकैरियोट्स में क्या होता है, राइट हैंडेड होता है डीएनए एंड नेगेटिवली सुपरकोइल्ड होता है, राइट. एंड ये लिंकिंग नंबर इज अ टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी ऑफ डीएनए, ये अभी मैं आपको बता ही चुकी हूँ. लिंकिंग नंबर डीएनए की क्या है, टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी है, राइट. अब हम एक बार ये देखते हैं व्हाट इज नेगेटिवली सुपरकोइल्ड एंड व्हाट इज पॉजिटिवली सुपरकोइल्ड. ये मैं आपको एक बार एक्सप्लेन करती हूँ. जो नेगेटिवली सुपर कॉइलिंग है उसको हम लेफ्ट हैंडेड सुपर कॉइलिंग भी बोलते हैं. इसका मतलब ये है कि द नेगेटिव सुपर कॉइलिंग क्या नेगेटिव सुपर कॉइलिंग इन्वॉल्व्स ट्विस्टिंग अगेंस्ट द हेलिकल कन्फॉर्मेशन, ट्विस्टिंग इन लेफ्ट हैंडेड fashion, which preferably underwind the helix at low twisting stress and notes the DNA into negative supercoil at high twisting stress.
नेगेटिव सुपर कॉइलिंग का मतलब होता है बेसिकली जो हेलिकल कन्फर्मेशन है उसके अगेंस्ट जो लेफ्ट हैंडेड साइड में हमारा डीएनए का जो अंडर वाइंडिंग है वो लेफ्ट हैंडेड साइड में हो, जबकि हम पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग को डिफाइन कर सकते हैं दैट पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग ऑफ डीएनए अकर्स व्हेन द राइट हैंडेड डबल हेलिकल कन्फर्मेशन ऑफ डीएनए इज ट्विस्टेड इवन टाइटर, राइट, and the helix begin to distort or and node. पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग को हम ऐसे समझा सकते हैं कि जब डबल हेलिकल डीएनए का जो कंफर्मेशन है सीधे हाथ की तरफ या राइट हैंड की तरफ होता है, ट्विस्ट होता है और टाइट ट्विस्टिंग होती है, उसको हम पॉजिटिवली सुपर कॉइलिंग बोलते हैं, राइट। सो सुपर कॉइलिंग को आप इस डायग्राम में आराम से देख सकते हैं। लेफ्ट हैंडेड सुपर कॉइलिंग आपको ऊपर दिखाई दे रही है, बिल्कुल फर्स्ट डायग्राम में नेगेटिवली सुपर कॉइल्ड, राइट, एंड इन राइट हैंडेड हेलिक्स सच एज बी डीएनए। नेगेटिवली सुपर कॉइल्ड हमारे जो बी डीएनए में पाई जाती है सबसे पहली है, जहां पे राइट हैंडेड हेलिक्स होता है, ठीक है। फिर राइट हैंडेड ट्विस्ट या क्लॉकवाइज जिसको बोलते हैं हम, एनालॉगस टू पॉजिटिवली सुपर कॉइल्ड इन राइट हैंडेड हेलिक्स सच एज बीडीएनए। ये हमारे बीडीएनए में जो पॉजिटिवली सुपर कॉइल्ड है वो भी इसमें दिखाई गई है। सुपर कॉइलिंग आप देख रहे हैं बीच में जो डीएनए दैट इज रिलैक्स डीएनए एंड फर्स्ट वन इज पॉजिटिव सुपर कॉइल्ड एंड अनदर वन इज नेगेटिव सुपर कॉइल्ड, and this supercoiling is just because of we can say that this positive supercoiling is right handed and negative supercoiling is left handed. Now in this figure also you can see this is in prokaryotes, like supercoiling, relaxed position and introduce of supercoiling. Both type of DNA you can see here. Highly supercoiled DNA, higher cleavage complexes are also there. Supercoiled DNA, lower cleavage complexes are also there, and relaxed DNA is also there. और ये जो गायरेज इसमें दिखाया है, गायरेज जो है वो गायरेज जो एंजाइम है दैट इज फाउंड इन प्रोकैरियोट्स, राइट। सो बेसिकली सुपर कॉइलिंग का फंक्शंस बेसिकली होते हैं दैट इन जीनोम पैकेजिंग, जीन एक्सप्रेशन, आरएनए डीएनए सिंथेसिस में सुपर कॉइलिंग का मेन फंक्शन होता है। एज वी कैन सी मोर अबाउट सुपर कॉइलिंग, like in prokaryotes, plectonymic supercoiling are predominant because of their circular chromosome and relatively small amount of genetic material. This structure is called the folded genome, right? Within the folded genome, the chromosome is organized into domain or loop, each of which is independently negatively supercoiled, right? सो ये जो प्रोकैरियोट्स हैं इनमें प्लेटोनिमिक सुपरकॉइलिंग प्रीडोमिनेंटली देखी जाती है क्योंकि इनका जो क्रोमोसोम है वो सर्कुलर होता है और जो जेनेटिक मटेरियल है उसका अमाउंट बहुत कम होता है। इस स्ट्रक्चर को हम फोल्डेड जीनोम भी बोलते हैं। फोल्डेड जीनोम के अंतर्गत क्रोमोसोम इस तरह ऑर्गेनाइज रहता है कि जो डोमेन्स और लूप है वो इंडिपेंडेंटली नेगेटिवली सुपरकॉइल करते हैं, राइट। एक डायमरिक प्रोटीन HU जो है वो डीएनए को कंडेंस करता है और एंड रैप इन इट इन बीड लाइक स्ट्रक्चर, और बीड लाइक स्ट्रक्चर की तरह डीएनए उस पर रैप होता है, राइट। ये हम प्रोकैरियोट्स में देखते हैं। सो अगेन इफ वी टॉक अबाउट यूकैरियोट्स, we can see supercoiling in eukaryotes as well. In eukaryotes, DNA supercoiling exists on many level of both प्लेटोनिमिक एंड सोलेनॉइड टाइप सुपरकॉइलिंग, दोनों टाइप की इसमें मिलती हैं सुपरकॉइलिंग। सो सोलेनॉइड सुपरकॉइलिंग प्रोवाइडिंग मोस्ट इफेक्टिव इन कंपैक्टिंग द डीएनए। सोलेनॉइड सुपरकॉइलिंग इज अचीव्ड विद हिस्टोन्स टू फॉर्म अ 10 nanometer fiber. This fiber is further coiled into 30 nanometer fiber and then further coiled upon itself numerous times more to form
क्रोमेटिन एंड इवेंचुअली क्रोमोसोम, राइट। यूकैरियोट्स में क्या होता है, जो डीएनए सुपर कॉइलिंग की जो एग्जिस्टेंस है वो दोनों टाइप की देखी जाती है, प्लैक्टोनेमिक एंड सोलेनॉइड सुपर कॉइलिंग। सोलेनॉइड सुपर कॉइलिंग हम देखते हैं कि ये जो मोस्ट इफेक्टिव जो कॉम्पैक्टिंग है स्ट्रक्चर वो प्रोवाइड करती है डीएनए को। ये सोलेनॉइड सुपर कॉइलिंग बेसिकली जो हिस्टोन फॉर्म करते हैं 10 नैनोमीटर फाइबर्स पे, एंड ये जो 10 नैनोमीटर के फाइबर है ये अगेन 30 नैनोमीटर के फाइबर्स में कॉइल्ड होते हैं, एंड अगेन इसमें नंबर ऑफ टाइम के लिए ये कॉइल्ड होके क्रोमेटिन का निर्माण करते हैं, एंड इवेंचुअली ये क्रोमोसोम का निर्माण करते हैं। देन उसके बाद हम देखते हैं यूकैरियोट्स में वन मोर जो न्यूक्लियोसोम्स है, दे आर आल्सो इंट्रोड्यूस नेगेटिव सुपर कॉइलिंग इन यूकैरियोट। In this, DNA in nucleus of eukaryotic cell is packed in small particles known as nucleosome, in which double helix is wrapped almost 2 times around the outside circumferences of the protein core. हम देख सकते हैं जो यूकैरियोटिक जो डीएनए है यूकैरियोटिक के न्यूक्लियस में हम देखते हैं कि जब ये स्मॉल पार्टिकल न्यूक्लियोसोम्स के आसपास ये डबल हेलिक्स रैप करता है ऑलमोस्ट 2 टाइम, और आउटसाइड उस प्रोटीन की कोर की आउटसाइड एरिया पे जब रैप करता है तो हम इसमें नेगेटिवली सुपर कॉइलिंग आराम से देख सकते हैं न्यूक्लियोसोम की। सो ये जो पैकेजिंग है डीएनए की न्यूक्लियोसोम्स में, ये एक नेगेटिव सुपर हेलिकल डेंसिटी का एक सुपर हेलिकल डेंसिटी क्रिएट करती है। Thus, the packaging of this DNA into nucleosome introduce negative superhelical density in eukaryotes. So हमने देखा है जो सुपर कॉइलिंग है बोथ प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों के डीएनए में पाई जाती है। So अब हम आगे पढ़ते हैं कि what are the basic method to measuring the super coiling. जो सुपर कॉइलिंग है उसको हम किस मेथड से मेजर कर सकते हैं। बेसिकली सुपर कॉइलिंग को मेजर करने के दो मेथड है। फर्स्ट इज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड, अनदर इज डेंसिटी सेडिमेंटेशन मेथड। सो फर्स्ट वी डिस्कस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड। हाउ डीएनए आइसोमरेज can be separated by gel electrophoresis. We can consider that CCC DNA molecule, and we can see that CCC DNA molecule of same length but of different linking numbers are called DNA topoisomers. Even though topoisomers have the same molecular weight, they can be separate from each other by this method, which we can say gel electrophoresis, through a gel of agarose, right? The base of this separation is that the greater the width, the more compact the shape of CCC DNA. Once again we can think about the supercoiling telephonic cord, and it can cause to more compact structure of that telephonic cord. So more compact the DNA, more easily it is be able to migrate through the gel matrix. So that means the fully relaxed CCC DNA migrates more slowly if we compare it with highly supercoiled topoisomer of same circular DNA. So we easily this gel electrophoresis can separate different type of topoisomers, right? Then next is density sedimentation. So in this density sedimentation, cesium chloride can be used to separate DNA on the basis of its density, and it can be used to separate closed circular DNA from the linear DNA form as well. So it was about the separation methods. Now for today it's fine. You can go through with this lecture, और आप पढ़ के आगे टुमारो विल डिस्कस मोर। बेसिकली मैंने आपको समझाया कि ये जो सुपर हेलिक्सिटी है इसको सेपरेट करने के दो मेथड है। पहला इज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड में बेसिकली सीसीसी डीएनए
जब सेम लेंथ के डीएनए होते हैं लेकिन उनका लिंकिंग नंबर जब अलग होता है, उनको हम डीएनए टोपो आइसोमर्स कहते हैं। ये जो डीएनए टोपो आइसोमर्स हैं, इनका सेम मॉलिक्यूलर वेट होता है, परंतु जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में एग्रोस जेल को यूज करके हम इन्हें सेपरेट कर सकते हैं। ये जो सेपरेशन है ये बेसिकली उस पर डिपेंड करता है कि जितना ज्यादा आपका सीसीसी डीएनए कॉम्पैक्ट होगा, उस पर डिपेंड करेगा। मतलब जितना ज्यादा कॉम्पैक्ट होगा दैट मीन्स आपकी सुपर कॉइलिंग ज्यादा होगी, मीन्स आपका नंबर ऑफ रिथ ज्यादा होगा। सो जो जितना ज्यादा मोर कॉम्पैक्ट डीएनए होगा वो इजीली माइग्रेट करेगा इन जेल मैट्रिक्स में, और जो आपका लेस सुपर कॉइल्ड डीएनए होगा वो आपका थोड़ा स्लो मूव करेगा, माइग्रेशन उसका स्लो होगा। सो इस बेसिस पे हम इसे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को यूज करके हम इसको सेपरेट कर सकते हैं डीएनए टोपोआइसोमर्स को। देन अनदर मेथड इज डेंसिटी सेडिमेंटेशन, जिसमें हम सीजियम क्लोराइड को यूज करते हैं फॉर द सेपरेशन ऑफ डीएनए। टू सेपरेट हम बेसिकली इसमें लीनियर डीएनए को सर्कुलर डीएनए से सेपरेट करते हैं। सर्कुलर मीन सुपर कॉइल्ड डीएनए से हम इसे सेपरेट करते हैं बाय यूजिंग सीजियम क्लोराइड। सो ये सेपरेशन मेथड थे। सो नेक्स्ट क्लास में हम आगे पढ़ेंगे अबाउट topoisomerases enzyme in prokaryotes as well as in eukaryote. So thank you student, you study well. Thank you all.